آج سے یہ چیز سوچنی شروع کر دو کہ آپ نے ای کامرس انٹرپرینور بننا ہے تاکہ اس کے لحاظ سے آپ سٹیپ لینے شروع کر دیں. میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر آج کل کی کوئی ایک ان ڈیمانڈ ٹریننگ آپ کو کروائی جا رہی ہے وہ بہرحال زیادہ چانسز پروڈیوس کر دیتی ہے پیسے کمانے کے بنسبت جو آپ نے کہتے ہیں ڈگری کرنی ہے. بھائی ہم نے ایف ایس سی میں جو انگلش پڑھی تھی میرے خیال میں شاید آج بھی وہی ہے, وہ ہز فرسٹ فلائٹ اور وہ پھر مسٹر چپس ہوا کرتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوا کرتی. ابھی فوری طور پہ میرے ذہن میں 3 سے 4 بچیاں ایسی آتی ہیں کہ جو ابھی اپنی اسٹڈی میں ابھی یعنی کہ 4th سیمسٹر میں اور انہوں نے ماشاءاللہ سے ارننگ سٹارٹ کر دی. یہ جو بچہ ہے نا بیسیکلی یا یہ جو بچی ہے یہ پہلے نا ہائی ویلیو ان ڈیمانڈ اسکل سیکھتی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از ای بے. اچھا ای بے میں نا ورلڈ وائڈ بہت سارا گیپ پڑا ہوا ہے کہ وہ گھر بیٹھے ڈالرز یا وہ ایسا کیا کام کر رہا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. کلیکٹیو وزڈم وہ چیز ہے جس نے نا الحمدللہ ہمیں اتنا میچور کر دیا ای بے کے اندر. دو کہ ابھی بھی ای بے پہ ابھی بہت سارا کام ہونے والا, لیکن یہ وہ چیز تھی کہ نا اگر میں پہلے دن سے میں ہوتا کہ نہیں جی قاسم ثنا رامے ہی یہ سارا نالج یا اس کی ٹیم یہ چیز ڈیلیور کر رہی ہے تو ہم کبھی بھی چیزوں کو اتنا کمپریہنسو نہ کر پاتے. ای بے میں گیپ بہت بڑا پڑا ہے. اس وقت وہ تمام لوگ جو امیزون سیلرز, اس وقت وہ تمام لوگ جو ایٹسی سیلرز ہیں, اس وقت وہ تمام لوگ جو .com سیلرز یعنی کہ جن کی اپنی ویب سائٹس ہیں, یا جو چیز وہاں بیچ رہے ہو ای بے پہ بیچ لو. ہاں, سیکنڈ لارجسٹ ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے. تو اف یو آر کمنگ انٹو دی ای کامرس فیلڈ اسٹارٹ فرام ای بے. اچھا اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تک ای بے سے پیسے بننے شروع ہو کے سسٹینیبل نہیں ہوتے تب تک آگے موو نہیں کرنا. اچھا اس کے بعد جیسے اب ایٹسی پہ آتے ہیں, ایٹسی ایزیئر مارکیٹ. جب ایٹسی پہ آپ کی ایک یعنی کہ پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ کی 1-2 جو لوگوں کی ٹیم ہے اس کو مینیج کر رہی ہے, now this is the time to come into the Facebook marketplace. تو جو انہوں نے مارکیٹ پلیس کی کہتے ہیں اندر یعنی کہ چیز دینی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. پھر آپ کا 4th سٹیپ آتا ہے آپ کا اپنا کہتے ہیں ویب سٹور. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کون سی پروڈکٹس ای بے پہ بکتی ہیں, ایٹسی پہ بک رہی ہیں, فیس بک مارکیٹ پلیس پہ بک رہی ہیں. آپ کو چونکہ ہم نے کہا کہ آپ نے اسٹارٹ میں سروسز دینی ہے. Amazon PL ہرگز برا نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے, بٹ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ افورڈ کرتے ہیں یا نہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے 16 ٹن سامان رکھا ہوا ہے اور ہائی سپیڈ موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں. اچھا اب اس کے اندر ایک اور کیا چیز آتی ہے, چلے جی آپ نا اس 16 ویلر ٹرک میں بیٹھ گئے ہیں, 16 ٹن سامان رکھ لیا, ہائی سپیڈ موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں, فائن. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جہاں آپ کے ساتھ میں 250 کی سپیڈ سے 400 کی سپیڈ سے بڑے بڑے ٹرک گزر رہے ہوتے ہیں. ورلڈ کلاس کمپٹیشن آپ کا Amazon پہ ہوتا ہے. ٹو مائی بیسٹ انڈرسٹینڈنگ Amazon از فار دی مینوفیکچررز. یہ جو ڈگری یا جو بھی ان کی پڑھائی یا جو ساری زندگی محنت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے نا کہ کمانا شروع کر رائٹ. آپ کی جناب پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ارننگ نہیں ہے تو مطلب نہیں ملے گا رشتہ, اور جو دے گا وہ پھر بعد میں کہے گا کہ یار اللہ کا واسطہ تم کچھ کمانا شروع کر. تو ایک تو چیز ذہن کے اندر بالکل واضح ہونی چاہیے ہماری قوم کو کہ بھائی آپ یہ ساری ایفرٹس کر رہے ہیں ایک حلال جائز اور بہتر رزق ارن کرنے کے لیے. ارننگ کرنی ہے نا ڈالرز میں کر لو یار. IMF ہمیں یعنی کہ کس کرنسی میں لون دیتا ہے؟ ڈالرز میں. چائنا ہمارے پولیٹیشینز کے فوجیوں کے اکاؤنٹس بھی ڈالرز میں ہیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پولیٹیشینز کے تو ڈالرز میں. دوسری بات میں نہیں بولتا, جنرل کے اکاؤنٹس بھی ڈالرز میں, بلکہ یہ تو پوری کمپنیز ہی باہر یار ڈالرز کے اندر سوچنا شروع کریں, کیونکہ جب وہ ڈالرز میں سوچنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ڈالرز میں وجود دینا شروع کر دیں گے. ہاں جی, آپ نے ارننگ کیسے کرنی اس کے آئیڈیاز دینے شروع کر دیں گے. السلام علیکم ایوری ون. روپے چھوڑو ڈالر کماؤ, یہ ہے جناب ہمارا مشن, اور اس کے اوپر ہم لگے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو روز کے صرف $5 بنانے ہیں, اور یہ $5 بنانے سے پورے ملک کا قرضہ جو ہے 118 دنوں کے اندر اتر سکتا ہے. تو جناب اسی مشن کے ساتھ آج میرے ساتھ ہیں قاسم ثنا رامے. قاسم ثنا رامے ایکسپرٹ ہیں کسی بھی شخص کو, کسی بھی بچے کو بنیاد سے ای کامرس سکھانے میں. تو جناب یہ پاکستان کے اندر ای بے ٹریننگ کے اندر ایک جانا مانا نام ہے. ای بے آسٹریلیا کے اندر, ای بے UK کے اندر, ای بے USA کے اندر ہزاروں سٹوڈنٹس ان سے ٹریننگ لے کے اپنا مستقبل بنا چکے ہیں. اب یہ سارا کا سارا یہ جو بدلتی دنیا ہے, اس بدلتی دنیا کے اندر ہمیں یہ فارمولا سمجھنا ہے. بہت سے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ سب فراڈ ہیں, وہ یار یہ ٹریننگ بیچتے ہیں, وہ یار یہ اپنا کورس بیچتے ہیں. اور بھائی جو کورس بیچتا ہے, کورس رائٹ, جو کورس بیچتا ہے, کبھی آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے جا کے یہ باہر پوچھا نہیں اس سے, اس کے کسی
कंसर्न बंदे से कि 9.3 बिलियन रुपीस 9.3 अरब वो एक यूनिवर्सिटी इस मुल्क को कौम का खा जाती है, तो उसके बाद आउटपुट क्या है? क्या कभी किसी ने पूछा इस मुल्क के हजारों कॉलेजेस से कि यार ये जो आप मैट्रिक कराते जा रहे हो, एफए कराते जा रहे हो, उस एफए के अंदर जो सिलेबस है वो सिलेबस किस एज के लिए डिज़ाइन किया गया था? क्या वो इंडस्ट्रियल एज के लिए था या नॉलेज इन्फॉर्मेशन एज के लिए था? क्या आज की दौर के अंदर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है कि माउस क्या होता है और कीबोर्ड क्या होता है, या हमें ये बताना है कि ब्लॉकचेन क्या है, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मार्केट प्लेसेस क्या हैं, ई कॉमर्स क्या है, एसईओ क्या है, एडवर्ड्स क्या है, या एनएफटीज क्या है? तो जनाब हम लोग कासिम सना रामे से बहुत से सवालात पूछेंगे और मैं चाहूँगा कि उन सवालात के ये जवाब दें कि यार एक बच्चा जो मैट्रिक पास भी नहीं है, क्या वो ऑनलाइन अर्निंग कमा सकता है? क्या पाकिस्तान में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री के से काम करना पॉसिबल है? क्या हम यहाँ पर रहते हुए डॉलर्स वाकतन ही कमा सकते हैं, या ये धंधा है मेरा या इनका या पाकिस्तान में दूसरे कोर्स बेचने वालों का? तो जनाब मैं आज की पॉडकास्ट के अंदर कासिम सना रामे एम्पावर्स के सीईओ को वेलकम करता हूँ। वेलकम कासिम। थैंक यू सोहन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो कासिम। तो जनाब बड़ा शोर मचा है सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब हर बंदा अपना कोरस बेचना चाह रहा है, फ्रॉड लगाया हुआ है, नौजवान बच्चों के पैसे मार रहे हैं ये लोग। तो दोनों एस्पेक्ट मुझे बताइए कि क्या मार्केट के अंदर वाकतन ही, बिकॉज आप लोग इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर हो, मैं तो कभी दिल किया तो करवा लिया और ना दिल किया तो ना करवाया, इसके बारे में मुझे बताइए कि ये जो कोरस हो रहा है इसके अंदर कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई, ये जो भी आपने बात पूछी है ये ऑब्वियसली आजकल का एक पेन पॉइंट है बहुत सारे लोगों का, ख़ास तौर पे वो कि जो डिजिटल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स वाली साइड पे आना चाहते हैं। अभी आपने ये जो बात की कि हम दोनों साइड्स पे हम बात करें, यानी कि जिससे मुझे ये चीज़ आई है समझ में कि जो बेसिकली एम्पावरमेंट देने वाले लोग हैं, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, और जिन लोगों ने ट्रेनिंग लेनी है यानी कि स्टूडेंट्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहते हैं ये वाली बात करूँ। उसमें सबसे पहले मैं जो लोग बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मैं उनके हवाले से बात करता हूँ कि अभी जैसे आपने अभी इंट्रो में भी ये वाली बात की कि क्या कभी किसी ने इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ये कॉलेजेस वगैरह से जाकर पूछा है कि आपने एमएससी केमिस्ट्री करवा दिया, आपने एमफिल साइकोलॉजी करवा दिया, राइट, आपने एमएससी मैथमेटिक्स आपने करवा दिया, इस्लामियात करा दिया, इस्लामियात करा दिया, उसके बाद उनका कहते हैं फाइनेंशियल आउटपुट क्या है? ये आपकी बात कहते हैं बिल्कुल बजा है, क्योंकि वो एक बेसिकली एक ट्रेंड चल गया हुआ है, एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लोगों की एक चीज़ हो गई हुई है कि जी हमने यहाँ से डिग्री लेनी है, चाहे कोई फाइनेंशियल आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, वो एक सबकॉन्शियस एक्सेप्टेबिलिटी लोगों की जनरेट हुई हुई है। इस वजह से ऑब्वियसली वो उनसे क्वेश्चन नहीं करते। जब यही चीज़ किसी ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो आपको आज की टुडेज डिमांड स्किल देता है, अगर उसका कोई सक्सेस रेट या उससे कोई कमी हो जाए या उसके साथ कोई ऐसे मामला हो जाएं तो उसको लोग आके पकड़ लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, और उनको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं कि जी आपसे ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद हमारे रिजल्ट्स वो नहीं आए। अब ऑब्वियसली कमियां हो सकती हैं, मसाइल हो सकते हैं, उन्हें उन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कुछ लोग वाकईतन इस तरह के भी होते हैं इस ट्रेनिंग जार्गन के अंदर कि जिनका फोकस ये होता है कि जी हाँ जी बस हमारे पास फीस आ गई, बस अब हमने ना स्लाइड्स दिखाएं, स्लाइड्स के थ्रू गुजारें और हम कहते हैं फारिग करें इन्हें। बिल्कुल इस तरह के चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली इसमें जिस बच्ची ने या जो भी कोई यानी कि जिस बंदे ने ट्रेनिंग लेनी है, एक ड्यू डिलिजेंस उन्हें ऑब्वियसली बातें करनी चाहिए हो। इस चीज़ को ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, ना हम लोग मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रीजंस है ना बहुत सारी। अब एक बंदा है, फॉर एग्जांपल वो अगर ईबे पे ट्रेनिंग देता है, अभी उसको पता है कि उसने कौन से कोर्स कंटेंट्स बताने हैं, उसने वो कौन सी चीज़ें बतानी है जिससे आपको इमीडिएटली पैसे आने शुरू हो जाए। जैसे मैं एसईओ एक्सपर्ट नहीं हूँ फॉर वेब स्टोर्स, आप हैं, राइट,
अब अगर कहते हैं मेरा वो वाला बैकग्राउंड नहीं है वो वाला, राइट, वो बैकग्राउंड आपका है, तो जो कोर्स कंटेंट्स आप बना रहे हैं, चाहे मैं डिजिटल वर्ल्ड से हूँ, जो कोर्स कंटेंट्स आप बना रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट आप हैं, मुझे तो वो मानने पड़ेंगे कि वो ठीक है, अनटिल अनलेस कि मैं उसमें से गुजरूँ, मैं देखूँ और फिर 2-3 माह के बाद जाके मैं कहूँ कि नहीं जी ये आउटडेटेड थे या अच्छे थे या ऐसे थे या ऐसे। तो ऑब्वियसली जिस भी बंदे ने जिस भी ट्रेनिंग कंपनी या इंस्टीट्यूट को अगर उन्होंने असेस करना है तो उन्हें एक होलसम माइंड से देखना होगा उसे। अच्छा, मुझे आप कोई क्राइटेरिया बताइए कासिम के, कोई बच्चा जो है किसी भी कंपनी से जाके शॉर्ट कोर्सेज की ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, 2 माह 3 माह 4 माह 6 माह के अंदर अंदर, तो आप मुझे 1 या 2 पॉइंट बताइए कि बच्चे आपने ये चीज़ों को कंसिडर करना है बिफोर मेकिंग परचेज या बिफोर गेटिंग एडमिशन। उसमें उस्मान भी कहते हैं एम्पावरर्स, यानी कि कासिम सनारा में हम तो एक ही चीज़ के अंदर बात करते हैं कि उनके कितने पास्ट आउट स्टूडेंट्स ने पैसे बनाने शुरू कर दिए हैं, मोर स्पेसिफिकली डॉलर्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि हम कहते हैं कि कमाई करनी है ना, डॉलर्स में कर लो, राइट। तो सबसे पहले तो ये कि जी आपके कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये डॉलर्स बनाने शुरू कर दिए। देखिए फेक स्टोरीज का भी है ना। हाँ जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, ये आपकी बात कहते हैं बिल्कुल ठीक है कि फेक स्टोरीज भी हैं। जिन लोगों की स्टोरी और वो नाम टैग करके अपने ग्रुप में या अपने पेज पे शेयर करते हैं, तो वो जो टैग हुआ है उस पर क्लिक करें, उसे जाके क्वेश्चन कर लें, राइट। अच्छा, उस कंपनी या इंस्टीट्यूट का जो इंडक्शन डिपार्टमेंट है, जो एडमिशन डिपार्टमेंट है, उनसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमें कोई 2-4 अपने कोई ऐसे स्टूडेंट्स बता दें। और ये हक है हर स्टूडेंट का, ये हर स्टूडेंट का हक है, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो भी कहते हैं वो कोई स्टोरीज शेयर कर रहे हैं अपने कहते हैं फेसबुक पे, उन्होंने टैग किया हुआ होता है, उनसे आप जाके कहते हैं 2-4 क्वेश्चन करें, आपको कहते हैं आइडिया हो जाएगा। हैविंग सेड ऑल दिस, मैंने जो एक चीज़ देखी है कि अगर आजकल की कोई एक इन डिमांड ट्रेनिंग आपको करवाई जा रही है, वो बहरहाल ज़्यादा चांसेस प्रोड्यूस कर देती है पैसे कमाने के बनिस्बत जो आपने कहते हैं डिग्री करनी है। मैं डिग्री इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मैं बहुत खिलाफ। नहीं, आप हैं मैं तो खिलाफ हूँ। मैं तो ये कहूँगा ना, ये जो कासिम सनार आमिर ने भी बात की ना, आप एक काम करना, ये जितने भी कंपनीज हैं जो ट्रेनिंग्स करवा रही हैं, आया वो एक्सट्रीम कॉमर्स है या अनेबलर्स है या एम्पावरर्स हैं या हुज़ैफा अली की कंपनी है या मैं हूँ, यार आप हमारे पास आया के पूछोगे ना कि यार अच्छा आपकी कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, हम एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो डेटा देंगे, ऑब्वियसली, ठीक है जी यार, कुछ ना कुछ बहुत कुछ। हाँ, एक काम करना ना, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मियांबर से जाके पूछना, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों से पूछना, लम्स वालों से जाके पूछना कि यार कोई मुझे डायरेक्टरी बताओ जहाँ पर आप किससे पढ़े लिखे लोग, डिग्री याफ्ता लोग ना कोई बड़ा काम कर रहे हो, तो उतार के ना डंडा या जूता वो सीधा, और उनकी तालीम भी कम हो, और उनकी तालीम भी कम हो, तो फिर आपका वो इंफॉर्मेशन डेस्क पे जो हाल करेंगे ना, ये आपको पूछने के बाद ही मालूम चलेगा, ठीक है जी। खैर, अच्छा, अब जो दूसरी साइड है कि स्टूडेंट्स वाली साइड, ये तो मैंने बता दिया कि वो जो कंपनीज वाली साइड है कि वो, अच्छा जो स्टूडेंट्स वाली साइड है वो अपनी कहते हैं ड्यू डाइलिजेंस करें। और आपने जैसे ये वाला कहते हैं क्वेश्चन किया कि उनकी किसी ट्रेनिंग कंपनी की आपने कहते हैं इफेक्टिवनेस कैसे चेक करनी है, तो हम तो कहते हैं जी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस उनके स्टूडेंट्स ने कितनी ले ली और उनकी उस पर एफर्ट या इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, राइट। अच्छा, हमारा एम्पावर्स का मानना ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लग रही सिवाय उस इन्वेस्टमेंट की जो आपने अपनी लर्निंग पे करनी है, ठीक है, और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कोई चोरी नहीं कर सकता, खींच नहीं सकता, वो आपने अगर काम नहीं भी किया ना वो कभी ना कभी आपके इस्तेमाल में आ जाएगी, तो उस इन्वेस्टमेंट के अलावा आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उनका कहते हैं सक्सेस रेट क्या है। तीसरा ये कि आप थोड़ी सी ड्यू डाइलिजेंस और कर लें, चाहे आपको इतना अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, कि उनका बेसिकली ट्रेनिंग कंटेंट क्या है, उसमें वो प्रैक्टिकल कितना इन्वॉल्व करते हैं, ये 2-3 चीजें आप देख लें। मैं आपसे फिर अगेन ये सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर डॉक्टर बनने के से पहले, इंजीनियर बनने से पहले क्या कभी किसी ने सिलेबस चेक किया है? नहीं। कि यार ये 30 साल पुराना सिलेबस है, वो जिसने वो किताब लिखी है उसको मरे 50 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, तो आप वो किताब, हमने एफएससी में जो इंग्लिश पढ़ी थी मेरे ख्याल में शायद आज भी वही है, वो हिज फर्स्ट फ्लाइट और वो फिर मिस्टर चिप्स हुआ करता था और पता क्या क्या चीजें हुआ करती। आई डोंट नो कि आजकल भी वही है या नहीं, बट हमारे तो वो वहां पर तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं, 9.3 अरब रुपया पंजाब यूनिवर्सिटी उस प्रॉपर्टी के अलावा जिसको वो होल्ड करती है, ठीक है जी, वो खा जाती है। और आज तक कितने बड़े नाम दिए इस मुल्क को उन्होंने। उस्मान भाई यही आ वाली बात अपनी वेबसाइट तक नहीं मादर के साथ ठीक कर सकते। हाँ, अपनी वेबसाइट बिल्कुल। 11 सितंबर 2022 को इंशाल्लाह एम्पावरर्स के नाम से ये सारी एक्टिविटी एम्पावरमेंट के स्टार्ट की हुई, हमें हो जाएंगे 2 साल।
2021 में जब अभी हम आंखें खोल रहे थे, हमने 1 बिलियन रुपीस से ज्यादा की लोगों की फाइनेंशियल एक्टिविटी जनरेट कराई थी। भाईजान एक सेकंड अच्छा। होल्ड कीजिएगा, यहाँ पर रुक जाएं। हाँ जी। ये जाना है वीडियो लाइव, हाँ जी, हाँ जी, और उसको हजारों नहीं लाखों लोगों ने देखना है। बिल्कुल। अनेबलर्स ने, एक साकिब अजहर ने दावा किया था, अभी तक ना लोग उनसे प्रूफ मांग के, तो वो जो है बिल्कुल कहते हैं। आप क्या कितने पैसे बताया आपने? 1 बिलियन PKR से ज्यादा की हमने फाइनेंशियल यानी एक्टिविटी जनरेट की थी। 1 अरब रुपया की जनाब फाइनेंशियल एक्टिविटी जनरेट हुई। इसका मैं मतलब भी बता और दूं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। भाईजान ईबे के ऊपर, तमाम सुनने वालों को ये मेरा पैगाम है, ईबे के ऊपर, अमेज़न के ऊपर ये पीनट भी नहीं है। ये पीनट भी नहीं है। हाँ, 1 अरब रुपया कुछ भी नहीं है। आप आगे चलें। अच्छा, उसमें उस्मान भाई, सिर्फ जो 2021 में एक हमारा ना कहते हैं क्लाउड ऑर्डर फुलफिलमेंट सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग और जो जिनके अपने स्टॉक्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ 2021 में जो हमारे अभी मेरे ख्याल में शायद 20% स्टूडेंट उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे थे, 39,000 ऑर्डर्स उसमें से कहते हैं प्रोसेस हुए थे। 39,000 ऑर्डर्स प्रोसेस हुए थे। इट मीन्स कि एक्चुअल में अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमारा स्टार्ट था, राइट। अच्छा, अब उसमें यह है कि इस साल हमारा फोकस है कि हम इस एक्टिविटी को 4 बिलियन रुपीस पे ले जाएं। अच्छा, ये जो हमने एक्टिविटी जनरेट कराई थी, इससे हमारी क्या मुराद? हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, राइट, जिसमें लोग आते हैं और फ्री कहते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा वो लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल से कहते चीज़ें सीख रहे हैं और उसके बाद उन्हें कोई मसला होता है तो वहीं कमेंट्स में या हमारे फेसबुक ग्रुप में आके पूछते हैं, राइट। तो ये जो कहते हैं एक कम्युनिटी बनी हुई है, इनकी जो हमने फाइनेंशियल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ सेल्स हमने जनरेट की, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब उसमें क्या है कि ये इंशाल्लाह हम 4 बिलियन की इस साल का हमारा फोकस है कि हम इंशाल्लाह अचीव कर जाएं। और ये इंशाल्लाह भी हमने इसको असेस करना है। हम इंशाल्लाह कहते हैं हमने 50% भी हैव टच। मैं जी आता हूँ इनकी तरफ। बैक टू द क्वेश्चन। एक बच्चा किसी गांव में रहता है, एक बेटी किसी घर की चादर चार दीवारी के अंदर रहना चाहती है। मुझे कासिम ये बताएं यार, ये ख्वाब नहीं लगता कि डॉलर्स आ जाएंगे? बिल्कुल, ये जब तक हाथ पे रिसीव नहीं होता तब तक कहते हैं ये बिल्कुल ख्वाब लगता है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि जो रीसेंट मंथ है, ये लास्ट मंथ जो है, इसमें अभी फौरी तौर पे मेरे ज़हन में 3 से 4 बच्चियां ऐसी आती हैं कि जो अभी अपनी स्टडी पे हैं, माशाल्लाह, अभी यानी कि 4th सेमेस्टर में हैं, राइट। और उन्होंने माशाल्लाह से अर्निंग स्टार्ट कर दी। अभी हमारी एक स्टूडेंट है, उसने कुछ 3 दिन पहले ज़बरदस्ती आके हमें पूरे ऑफिस में आके ट्रीट दी। शी वॉज फ्रॉम मुल्तान। और मैंने पूछा जी क्यों? कहती सर 1,05,000 रुपया PKR में रिसीव हुआ है, जो बेसिकली डॉलर्स में से कन्वर्ट हुआ। PKR फीस ये कैसे आता है, मतलब किस चीज़ के अगेंस्ट? हाँ जी, मतलब कोई पे करता है आपको, आप क्या करते हो? बिल्कुल हम क्या करते हैं कि हमने बच्चा क्या करता है ऐसा कि जिसकी अगेंस्ट कोई उसको पे करता है? हाँ जी, घर में बैठे हुए। हाँ जी, ये जो बच्चा है ना बेसिकली, या ये जो बच्ची है, ये पहले ना एक हाई वैल्यू इन डिमांड स्किल सीखती है। ठीक है। दैट इज ईबे। ठीक है। अच्छा, ईबे में ना वर्ल्ड वाइड बहुत सारा गैप पड़ा हुआ है। सर्विसेज में भी, ईबे की ट्रेनिंग्स में भी। आप ऑनलाइन अगर चेक करते हैं ना, आपको अमेज़न की बहुत ट्रेनिंग्स मिलेगी। ईबे पे आपको बहुत चंद मिलेंगी। और इवन अगर आप यूडेमी पे आप चले जाए ना, तो जो सबसे ज्यादा बिकने वाला कोर्स है, कोई 10,000 से ज्यादा सेल्स है, वो 4 घंटे का कोर्स है। और हमारा एक सेशन 3 घंटे का होता है। हमारे रिकॉर्डेड इस वक्त जो कहते हैं कॉम्प्रीहेंसिव, वो जो एक हमने एक नॉलेज बेस है, वो 74 आवर्स से ज्यादा का है। और एक चीज क्लिक करके बताइए कि ये आपने करना कैसे। उसके बाद भी अगर कोई बंदा सक्सेस नहीं लेता तो हम उसको कहते हैं कि यार फिर आप अपने इस वक्त एटीट्यूड के ऊपर काम करो, अपने एप्टीट्यूड के ऊपर काम करो। अब ये जो आपकी बात है कि वो घर बैठे डॉलर्स या वो ऐसा क्या काम कर रहा है कि उसकी जेब में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। ये हाई वैल्यू स्किल सीखने के बाद अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वह empowerers.co/EFC एम्पावरर्स फ्री कोर्स, इस पे चला जाए। यूट्यूब का कहते हैं ये एक प्लेलिस्ट है, फिलहाल इसमें 22 वीडियोज़ हैं और इंशाल्लाह इसी महीने या अगले महीने में कब सारी वीडियोज़ आ रही। एक्सक्यूज कोई नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है, जाओ वहां से जाके देखो। मसला कोई आता है, फेसबुक ग्रुप में आओ, empowerers.co/group, उसमें जाओ, जाके क्वेश्चन पूछो, वहां पे एक टीम बैठी हुई है जो आपकी चीज़ों का आंसर करती है। अच्छा, अगर आप कहते नहीं मैं अफोर्ड करता हूं, तो फिर आप किसी भी पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आ जाएं, उसमें आपका फ़ायदा है, राइट। आपका क्या फ़ायदा है कि जो सक्सेस आपने साल, 1.5 साल, 2 साल में आपने लेनी है, आपका सिर्फ 2 महीने में आप ना एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ले लेते हैं।
अच्छा, ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पे कासिम मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये कि एक बड़ा मतलब मुझे आप ये बताइए कि जो आप पढ़ाते हैं क्या वो सारे का सारा यूट्यूब के ऊपर या यूडेमी के ऊपर या बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स इस तरह हमारी एकेडमी है, क्या वहाँ पर फ्री अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। नहीं अवेलेबल। अच्छा, रीजन है उसकी, एक बंदे ने किसी एक चीज के ऊपर वीडियो कर दी, एक बंदे ने किसी दूसरी चीज के ऊपर वीडियो कर दी, यानी कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में अवेलेबल तो है। हाँ नहीं, फ्री सारा कंटेंट अवेलेबल तो है, नहीं इतनी डिटेल में नहीं है। ठीक है, टू माय बेस्ट नॉलेज, ठीक है, टू द बेस्ट नॉलेज ऑफ माय टीम, ठीक है, ये सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ईबे की मैं बात करूं। अच्छा, दूसरा जो अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा पार्शल हैं, ठीक है, जिससे मुराद कि ईबे अकाउंट क्रिएशन आपको बहुत सारे लोग बताएंगे। ईबे की पॉलिसी के मुताबिक आप ईबे का बायर अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद उसको सैलरी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि आप चाहे अमेरिका में हैं, आप चाहे नेटिव अमेरिकन हैं, अमेरिका का आपने एड्रेस डाला है, सारी चीज़ें आपकी जेन्युइन हैं, देर आर 90% चांसेस कि आप अगर एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं सस्पेंड हो जाएगा। अब वो आपको वो चीज़ कहते हैं किसने बतानी है, वो थ्रू दी एक्सपीरियंस आएगी। अच्छा, ये एक्सपीरियंस सिर्फ कासिम सना रामे का अकेले का नहीं है, ये सिर्फ अकेले उसकी उस टीम का नहीं है, ये एक्सपीरियंस इस वक्त इस पूरी कम्युनिटी का है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट्स, राइट, उन्हें जब कुछ चैलेंजेस आ रहे होते हैं वो अपने ट्रेनर से आके पूछ रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ से उनके पास जा रही होती हैं और बहुत सारे रियल टाइम चैलेंजेस उनकी तरफ से हमारे पास आ रहे होते हैं। हम एक टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज़ करते हैं, वो क्या है, कलेक्टिव विजडम। कलेक्टिव विजडम वो चीज़ है जिसने ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना मेच्योर कर दिया ईबे के अंदर। दो कि अभी भी ईबे पे अभी बहुत सारा काम होने वाला है, लेकिन ये वो चीज़ थी कि ना अगर मैं पहले दिन से मैं होता कि नहीं जी ये कासिम सना रामे ही ये सारा नॉलेज या उसकी टीम ये चीज़ डिलीवर कर रही है, तो हम कभी भी चीज़ों को इतना कॉम्प्रीहेंसिव ना कर पाते, राइट। हुआ क्या कि हमने अपने ग्रुप मेंबर्स को, हमने अपने स्टूडेंट्स को वेलकम किया कि भाई इस कलेक्टिव विजडम में आप भी कहते हैं कंट्रीब्यूट करो, और अल्हम्दुलिल्लाह उस कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम इस लेवल पे हैं। हमसे मुराद है कि पाकिस्तान इस लेवल पे है कि टू आर बेस्ट नॉलेज, अभी तक हमने ईबे की जितनी भी ट्रेनिंग्स देखी है इंटरनेशनल, टू आर बेस्ट नॉलेज, हो सकता है कहते हैं मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्लोबली। अच्छा, यहाँ पर कासिम मैं बहुत से मतलब आपसे और सॉरी मैं आपकी ये वाली बात काट रहा हूँ कि आपने कहा कि आपने कहते मुझसे ये चीज़ कहते पूछी कि जो पैसे हैं वो उसके कैसे बनने शुरू होते हैं। हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने ऊपर कर ली इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, अब आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी इन चीज़ों की सर्विसेज ऑफर करनी है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, उसके साथ साथ पाकिस्तानी के साथ काम ही नहीं करना। खैर ठीक नहीं मैं ओवरसीज पाकिस्तानी, अच्छा उसकी ना कुछ टर्म्स हैं कि कौन से ओवरसीज पाकिस्तानीज और किन टर्म्स पे वो हम ना कहते हैं गाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है गोरा, गोरे से मुराद ये है कि किसी भी डेवलप कंट्री का वो बंदा काला भी हो सकता है, किसी भी डेवलप कंट्री का वो बंदा जो डॉलर्स में पेमेंट करने में मतलब आसानी से आपको पेमेंट करता है, हाँ जी, जो कहते हैं कन्वर्जन नहीं करता। अच्छा, अब उसमें क्या है कि उन्हें आप कहते हैं सर्विसेज देनी शुरू करें, और उससे क्या है कि आपके पास इंस्टेंटली से मेरी मुराद है कि 90 डेज 120 डेज के अंदर आपके पास एक बेहतर अर्निंग आनी शुरू हो जाती है, आई हुई है और बड़ी होती चली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ कासिम सना रामे से मिलने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं ईबे के ऊपर 2004 से मैं काम कर रहा हूँ। आप तो बाबे हैं माशाल्लाह से। 2007 के अंदर मेरे एक स्टोर के ऊपर मेरी एक माह में 50,000 60,000 डॉलर सेल हुआ करती थी। इशू ये है कि मैंने उसको छोड़ दिया, क्यों, मुझे अपने .coms के ऊपर अगर 2x या 3x प्राइस में बेच सकता हूँ, मैं ईबे पे क्यों बेचूंगा। तो मुझे एक बंदा चाहिए, तो मैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग देने के लिए तैयार हूँ कि यार मेरा ईबे का स्टोर चला लो, मेरा अमेज़न का स्टोर चला लो, मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आप चला लो, तो आप प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से कोई शख्स जो अमेरिका में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, उसके वहाँ पर बैंक अकाउंट्स भी हैं, उसके पास वहाँ पर वेयर हाउस भी है, उसको एक पार्टनर चाहिए, बिल्कुल एक ऐसा इंटरनल मोटिवेटेड बच्ची जो उसके बिजनेस को मैनेज करके एक्सपैंड कर सके, ग्लोबल मंडियों में लेके जा सके। और दूसरी बात कासिम, मैं आपने जो बात ऐड की थी उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं रोज़ योगा करता हूँ और मैंने बहुत अरसा कोशिश की कि मैं अकेला कर लिया करूँ,
कासिम नहीं होता। नहीं होता आपको। मुझे रोज एक सर्टन क्लास के अंदर जाना पड़ता है, वो एक ग्रुप है, वहाँ पर मेरी दोस्ती हो गई, अब मेरा दिल नहीं कर रहा तो मुझे वो कॉल कर रहे हैं, भाई कहाँ पर हो, आए नहीं। बैडमिंटन मैं खेलता हूँ, वहाँ पर भी मैं अकेले बैडमिंटन नहीं खेल सकता ना, बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पर मैंने एक क्लब को ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पर आप 2 दिन ना जाओ तो दोस्तों की कॉल आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो कासिम ने वर्ड यूज़ किया कलेक्टिव विजडम, आपको आज इंफॉर्मेशन इतनी एक्सेसिवली अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर कि ट्रस्ट मी, मैं इस बात से कासिम से एग्री नहीं करता कि आपको नहीं मिलती। आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट के ऊपर अगर आप सीखना चाहो। लेकिन क्या आप वो ख़ास बंदे हो जो खुद से इतने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो कि आपको डाइवर्जेंस जो है डिस्टर्ब ना करें, आपको नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब ना करें। आप यूट्यूब के ऊपर ईबे की वीडियो देखते आप किसी सलमान खान का गाना ना सुनना शुरू कर दो। तो क्लासरूम की एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मकसद ये है, वहाँ पर टीचर असाइनमेंट देता है। मैं आज भी अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। यस, मैंने उनकी फीस को वापस दी और चलो इसको फारिग करो, बिकॉज क्यों, उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं की। अब एक बंदे को बाहर निकालने से 99 मिसाल के तौर पे लोगों को कान हो गए, नहीं भाई सबमिट करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप YouTube से वीडियो देख लो, पढ़ लो भाईजान, यूडेमी से भी पढ़ लो, बिल्कुल ऐसे। लेकिन व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट, व्हाट अबाउट द एनफोर्समेंट एंड व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस। इसमें सुन भाई आपकी मैं इस वाली बात करने एक चीज़ ऐड करता हूँ कि या तो हो ना कि भाई आप आए, आपने जनाब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, यानी कि फ़ी पे की आम अल्फाज में, और आपको ना क्लासेस स्टार्ट हो गई जूम पे, आपने क्लास ली और बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। वो जो एक पब्लिक ग्रुप है जिसमें हम फ्री गाइड बहुत सारा कर रहे हैं, तकरीबन हर महीने 1 मिलियन हमसे लेता है वो ग्रुप। उसकी मैनेजमेंट, उसके मॉडरेटर्स, उसकी कहते हैं बैकएंड की उसकी चीज़ें, राइट, और कहते हैं नॉलेज पोर्टल है। हाँ जी, नॉलेज पोर्टल। अच्छा, दूसरा फिर जब आप कहते हैं एज अ स्टूडेंट आप आए हुए हैं, आपके लिए एक सेपरेट फेसबुक ग्रुप है, फिर आपके लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके अलावा आप स्केजुअल कॉल्स कर सकते हैं। आप एक इशू में फंस गए, आपको ना जनाब रिटर्न एक रिफंड कर रहे हैं आपने, अब आपको वो चीज़ करनी नहीं आ रही। अब अगले 5 दिन अगर आपको उसका मसला समझ में नहीं आता, आपको तो अकाउंट की कहते हैं हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो गई। अगर वही चीज़ आपको एक कॉल या एक मैसेज या वो जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया उसमें से कहीं से वाली हेल्प मिल जाती है, तो आपको तो कहते हैं मसला सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको कहते हैं मैं एक चीज़ मैं ये बात कहूँ कि आपकी एक बात से इंस्पायर हुआ मैं, आपकी एक वीडियो में देख रहा था। वो वीडियो क्या थी कि अगर हर पाकिस्तानी $5 डेली कमाने शुरू कर दे, ये एक बहुत आइडियल चीज़ है, नॉर्मली यूँ नहीं होता, लेकिन अगर हर पाकिस्तानी एवरेजली $5 कहते हैं ये पर डे कमाना शुरू कर दे, तो आपने शायद बताया था 118 दिन के अंदर कर्जा उतरता है। चले जी, हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी उस्मान भाई जो है ना वो एक दरवेश बंदे हैं, वो कहते हैं कुछ भी कह देते हैं। मैं आपकी इस बात को लेता हूँ सीरियस यार, लेट्स डू इट, कर लेते हैं इस पे। मैंने तो इसको कहते हैं सीरियस लिया, राइट। मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे कहते हैं यूट्यूब चैनल पे जो हमारी वीडियोस जाती हैं या ये जो हमारा ग्रुप है, मैंने उन्हें ये चीज़ कहनी शुरू कर दी कि भाई आपने अभी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई अभी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी, आपने सिर्फ अभी सर्विसेज देनी है सिर्फ। क्योंकि उसमें ईबे में गैप बहुत बड़ा पड़ा है। इस वक्त वो तमाम लोग जो अमेजोन सेलर्स हैं, इस वक्त वो तमाम लोग जो एटसी सेलर्स हैं, इस वक्त वो तमाम लोग जो .com सेलर्स यानी कि जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, या जो चीज़ वहाँ बेच रहे हो ईबे पे बेच लो। सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अव्वल तो आपको अच्छी सेल्स मिलेगी, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसकी सेल्स अमेजोन पे अच्छी हैं, ईबे पे अच्छी नहीं होती, कुछ होती हैं जिनकी ईबे पे अच्छी होती है, अमेजोन पे नहीं होती, किसी की दोनों पे होती हैं। मैं कहता हूं कि सिर्फ आपकी अगर 10% भी सेल बढ़ जाती है आपकी, भाई कुछ तो आपको फायदा हो रहा है ना। अच्छा, दूसरा, अगर आपका एक ब्रांड अमेजोन पे एस्टैब्लिश्ड है, उस ब्रांड को ईबे पे ले आओ ताकि आपकी कहते हैं प्रेजेंस कहते हैं मल्टीपल जगह पे हो। अच्छा, फिर हमारा ये जो मैसेज है, हमारा एक ना कॉम्प्रीहेंसिव मैसेज है। बेसिकली हम कहते हैं कि आपने ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। आज से ये चीज सोचनी शुरू कर दो कि आपने ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनना है, ताकि उसके लिहाज से आप स्टेप लेने शुरू कर दें। अच्छा, अब आपने आज से 5, 6, 7 साल के बाद एक एस्टैब्लिश ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनना है। और एंड इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आप कह रहे यार मेरे ना इतना अच्छा गुजारा नहीं हो रहा और मैं
फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर काम करना चाहता हूँ, आपके लिए बेस्ट रहेगा ई कॉमर्स, क्योंकि ना ई कॉमर्स मल्टी फोल्ड्स बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर 83% ई कॉमर्स ने ग्रोथ ली है पिछले 4 सालों के अंदर। 83%, $2.5 बिलियन से वो 46-47 बिलियन डॉलर के आसपास उनकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री चली गई है। अच्छा, अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने 83% कहते हैं ग्रोथ ली। मेरा 2018 से लेकर 2022 तक वो उस वक्त कोई $25 बिलियन के आसपास थे, अब एक्सपेक्टेड है कि $46 बिलियन के ऊपर जाके क्लोज करेंगे। तो इफ यू आर कमिंग इनटू द ई कॉमर्स फील्ड, स्टार्ट फ्रॉम ईबे। आई एम ट्रूली एग्री विद कासिम सनारा में। मेरे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, मैं जब भी कोई .com लॉन्च करनी होती है कासिम, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले, आपको मालूम है कि मैं उस प्रोडक्ट को जिसकी मैंने .com लॉन्च करनी, मैं ईबे पे टेस्ट करता हूँ। ज़बरदस्त। ये तो उस्मान भी कहते हैं हमारे लिए एक हौसला अफजाई की बात है, मैं उसको ईबे पे टेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के एक डिजिटल गुरु जो है माशाल्लाह, वो भी मतलब ईबे के ऊपर मैंने ईबे अकाउंट इसलिए रखा हुआ था कि मैं उस पे प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ। अगर ईबे के अंदर मुझे 10 ऑर्डर्स आ जाए ना, तो मुझे पता मैं वेबसाइट पे 100 ऑर्डर ले लूंगा। और मुझे ये भी मालूम है कि अगर ईबे के ऊपर मैं $10 बना रहा हूँ ना, तो मैं अपनी वेबसाइट पे $50 में वो चीज़ बेच लूंगा। जबरदस्त हो गया, ठीक है ना। तो मैं उन तमाम लोगों को, देखो ये जिस तरह आपने क्वेश्चन ही होता है कि जी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। भाई पहले दिन इल्लामा इकबाल के लेवल की शायरी नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ऐसा। यू हैव टू लर्न, पहले अल बे पे सीखो, फिर शायरी पढ़ना शुरू करो, फिर इकबाल जैसी तो शायरी शायद कोई नसीब हो जाए में कोई एक आध बंदा वैसा कोई एक शेर बोल दे। तो ये ई कॉमर्स ये भी एक आर्ट है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। और ये आपको ऐसे नहीं आएगा कि आपने पढ़ा याद कर लिया कि 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8, राइट। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह आपको पियानो बजाना सीखते हैं आप, जिस तरह आप वो कोई भी गेम सीखते हैं, सो दैट्स लाइक अ गेम। सो अच्छा, उसमें स्टार्ट फ्रॉम ईबे, अगर आपने ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनना है। अच्छा, जब आप ईबे पे 6 महीने, साल, 1.5 साल हो गया है और आपने पहले कम से कम 6 महीने खुद हर काम करना है आपने, ताकि हर चीज़ पे आपकी ग्रिप बन जाए, ठीक है, ईबे पे। अच्छा, अब जब आपके पास 2 या 3 अकाउंट्स आ गए, आप कम से कम भी $1,000 USDs आपने बनाने शुरू कर दिए और उसको आपने ऑटोमेट कर लिया। $1,000 सेल्स में या नहीं, अर्निंग। ठीक है। जब आपने वो $1,000 आपने बनाने शुरू कर दिए और उसका 80% ऑपरेशन आपने ऑटोमेट कर लिया, क्योंकि जैसे भी आपने स्टार्ट में ये वाली बात की थी कि जी क्या एक कम तालीम याफ्ता लोग भी इस काम को कर सकते हैं, तो 80% ऑपरेशन इस तरह का है जो एक वो बच्चा जो थोड़ा सा पीसी कंप्यूटर उस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता हो और उसके अलावा थोड़ी बहुत अंग्रेजी अंडरस्टैंड कर लेता हो कि ये क्या चीज़ है, तो 80% ऑपरेशन आप इसका इस तरह के बच्चों से, अपने छोटे भाई से, बहन से, भांजे भतीजे से, उनसे आप ऑटोमेट करा सकते हैं। जब आपकी ईबे से अर्निंग स्टार्ट होके और ऑटोमेट हो जाए 70 to 80%, यानी कि अब आपका कम टाइम लग रहा है, तब आपका नेक्स्ट स्टेप है एटसी। एटसी क्यों? एटसी इज ऑल्सो एन ईजियर मार्केट। ईबे पे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी, आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे है, आपकी कस्टमर सपोर्ट कैसे है, आपने अकाउंट की हेल्थ कैसे मैनेजमेंट करनी है, अब वो सारी चीज़ें आपको आ गई। एक चीज़ आपने ऑटोमेट कर ली। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक ईबे से पैसे बनने शुरू होकर सस्टेनेबल नहीं होते, तब तक आगे मूव नहीं करना, क्योंकि लोग ये एक मिस्टेक कर देते हैं, एक जगह से अभी बन नहीं रहे थे, अभी 6 महीने गुजरे नहीं, चलो जी वो जी मेरा एक दोस्त है जी अमेज़न पे काम कर रहा है जी, राइट, ऐसे नहीं। सब्र तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेसब्री कौम है हम लोग, फटाफट हम लोगों को मिलियनेयर बनना सबको। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जैसे आप एटसी पे आते हैं, एटसी ईजियर मार्केट। जब एटसी पे आपकी एक यानी कि पैसे आने शुरू हो गए हैं और आपकी 1-2 जो लोगों की टीम है उसको मैनेज कर रही है, नाउ दिस इज द टाइम टू कम इनटू द फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस आज ऐसे ही है, फेसबुक मंडी आजकल ऐसे ही है जैसे 6-7 साल पहले अमेज़न हुआ करता था। यानी कि आज से 6-7 साल के बाद फेसबुक उस लेवल पे होगा, क्योंकि फेसबुक को तो पता है हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब हम कौन सी बात कर रहे हैं, हमारी उर्दू को इंग्लिश में और किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देते हैं, इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट लाइक किए हैं, हाँ जी, हमारा बच्चा कौन है, हमारी बेगम को, मतलब सारी चीजें उन्हें पता है। तो जो उन्होंने मार्केट प्लेस की कहते हैं अंदर यानी कि चीज देनी है, वो कोई और नहीं दे सके। फिर आपका 4th स्टेप आता है, अब आपकी अपनी वेब, आपका अपना कहते हैं वेब स्टोर। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कौन सी प्रोडक्ट्स ईबे पे बिकती हैं, एटसी पे बिक रही हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे बिक रही हैं। आपको चूंकि हमने कहा कि आपने स्टार्ट में सर्विसेज देनी है, तो इस वक्त आपके कोई 8-10 गोरों या ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो गए हैं। आपको निगोशिएशन करनी आ गई, आपको कॉन्ट्रैक्टिंग करनी आ गई, जिसमें हम कहते हैं काफ़ी गाइड भी करते हैं। और आपके पास 2-3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर सामान भी अवेलेबल है, या कम से कम आपको ये पता है कि वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग से बिकती है। अब आपने अगर अपनी कहते हैं वेबसाइट लॉन्च कर दी है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपको कम से कम ये तो पता है यार ये चीज़ मैं सोर्स करके मैं कहते हैं बेच सकता हूँ, तो आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब सिर्फ आपने एक वेबसाइट बना के उसकी एसईओ करके उसको रैंक करना है, उसका ऐड चलाना है आपने, आपकी तो कहते हैं ऐसे ऐसे आपकी कहते हैं सेल स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें बल्कि एक हो रहा है सेशन, मैं बल्कि लाइव ही आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा इस वक्त जो empowerers.co जो हमारी इस वक्त की जो कम्युनिटी है, ये इस वक्त ना एज ए कम्युनिटी फेसबुक मार्केट प्लेस पे आ गई है। यानी कि हमने ईबे से स्टार्ट लिया था, हमने एटसी के ऊपर भी काफ़ी एम्पावरमेंट की, आजकल हमारी फेसबुक की जो एम्पावरमेंट है वो भी स्टार्टेड है। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा एज ए कम्युनिटी है कि हमने वेब स्टोर्स के ऊपर बातचीत शुरू करनी है और अपने लोगों को हमने ट्रेन करना है। उसके लिए मैं उस्मान भाई आपको आज लाइव यहाँ पे बैठे हुए रिक्वेस्ट करूँगा, ऑफर नहीं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मतलब ये ट्रेनिंग्स तो आप कहते हैं करवा ही रहे हैं, तो ये आपने एम्पावर्स की जो कम्युनिटी है उसके लिए स्पेशल आपने कहते हैं प्रोग्राम लॉन्च करना है, जिसमें यानी कि वो एज ए कम्युनिटी अपने 4th स्टेप पे आ जाए। फिर हम कहते हैं कि अब वो टाइम आया है जब आप कहते हैं अमेज़न के ऊपर अब आप आएगा। हाँ जी, अब आप आएंगे अमेज़न पे। क्यों? अब आपने अगर अमेज़न को पीएल करना है या होलसेल करना है, आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपको पता है कि चीज़ें कैसे बिकती हैं। अगर अल्लाह ना करे आपका पीएल फंस जाता है तो सारी प्रोडक्ट्स आप कहते हैं बेच लें यहाँ पे। आपकी वो प्रोडक्ट जो ईबे एटसी के ऊपर अच्छी बिक रही हैं उनका आप कहते हैं पीएल कर लें। तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि ये एक आपकी जर्नी है कि इससे आप ना एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनते हैं। लेकिन आपको सोच हर वक्त जहन के अंदर यही रखनी है कि यू आर एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। कासिम, इसके अंदर देखें, आपने सारा बताया एक बच्चे के लिए जिस बच्चे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने ये बताया, मैं सम अप करता चलूँ, आपने ये बताया कि वो बच्चा जो है सबसे पहले एक स्किल सीख ले, यानी ईबे के ऊपर उसने किसी भी कंपनी के लिए एज ए वीए कैसे काम करना है, यानी वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, हम कहते हैं जो हमसे ट्रेनिंग ले ना, क्योंकि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है, तो अपने लिए वीए का वर्ड यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा कंसल्टेंट। वो एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे। ये बेटर वर्ड है वैसे कि आप ईबे कंसल्टेंट जो है आप, या ईबे स्पेशलिस्ट गुरु जो है, एज ए गुरु आप काम करना शुरू कर दें किसी भी बंदे के लिए जो ईबे का अकाउंट रखता है। अच्छा, वो तो फिर मुलाजिम ना ही रहेगा सारी उम्र? हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर क्या कोई पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं आपके लिए कि आज आपने किसी भी कंपनी के ईबे कंसल्टेंट के तौर पे काम शुरू किया और आप कुछ अरसे बाद अपना ब्रांड ओन करते हो? हाँ जी, इसमें उस्मान भाई ऑब्वियसली ये तो अभी एक पॉडकास्ट है और इसमें हम इस घंटे के अंदर सारी बातें नहीं कर सकते। हमने कहते पूरी स्ट्रैटेजी बताते हैं। हम कहते हैं कि जब आपने $1000 बनाना शुरू कर दिया, 2-4 गोरों के साथ अच्छी कॉन्ट्रैक्टिंग होगी, दोस्ती होगी, आपकी चीज़ें आगे चल रही हैं, 1-1.5-2 साल के अंदर जब आपके पास अपना पैसा इकट्ठा हो गया या आपकी एक अच्छी ग्रिप बन गई है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि जब आप पाकिस्तानी जेमस्टोन्स को, सियालकोट की कहते हैं प्रोडक्ट्स को, वजीराबाद की प्रोडक्ट्स को, चाइना से चीज़ें मंगवा के अब आप अपनी प्रोडक्ट्स बेचें। अब आप वो लीजिए, स्टार्ट में ना करें। क्यों? जब आपने गाड़ी सीखनी है, अगर मैं पहले ही दिन एक बंदे को 16 व्हीलर्स ट्रक में बिठा के 16 टन का सामान रखूं और उसको कहूं कि ये एक हाई स्पीड मोटरवे है, चलो जी, यानी कि अमेज़न पीएल में पहले दिन करा दूं। अमेज़न पीएल हरगिज़ बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट डिपेंड ये करता है कि आप अफोर्ड करते हैं या नहीं। BMW 7 सीरीज अच्छी गाड़ी है, ऑब्वियसली मेरान से अच्छी है, अफोर्ड कितने लोग करते हैं उसे? अच्छा, आपने बाय करना अफोर्ड कर लिया, उसकी मेंटेनेंस कितने लोग अफोर्ड करते हैं? एक बंदा राजनपुर में रह रहा है, उसकी मेंटेनेंस भी अफोर्ड करता है, वो उसकी कहते हैं बाइंग भी अफोर्ड करता है, लेकिन उसको अगर हर चौथे दिन आना पड़ा लाहौर उसको ठीक कराने के लिए, तो वो तो नहीं कर सकेगा। यही चीज़ हमारी कहते हैं इधर ई कॉमर्स में कि अमेज़न पीएल या कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, वो ऐसे ही है कि जैसे आपने 16 टन सामान रखा हुआ है और हाई स्पीड मोटरवे पे आप जा रहे हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर एक और क्या चीज़ आती है, चले जी आप ना उस 16 व्हीलर ट्रक में बैठ गए हैं, 16 टन सामान रख लिया, हाई स्पीड मोटरवे पे आप जा रहे हैं, फाइन। मसला यहाँ पे आता है जहां आपके साथ में 250 की स्पीड से 400 की स्पीड से बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे होते हैं। वर्ल्ड क्लास कंपटीशन आपका अमेज़न पे होता है। टू माय बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, अमेज़न इज फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, and Amazon is the for manufacturers or for somebody who has at least
1 करोड़ रुपया स्पेयर, स्पेयर करोड़ों वाली बात नहीं है। हाँ जी, अब ये you cannot compete Chinese straight away। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, अब आपने अगर गाड़ी सीखनी है, यानी कि आपने अगर ई कॉमर्स सीखनी है तो भाई स्टार्ट लो स्मॉल। आप पहले दिन एक छोटे रोड पे एक छोटी गाड़ी में बैठ के कहते हैं सीखते हैं, फिर आप थोड़ी सी बड़ी रोड पे आते हैं, फिर थोड़ी सी बड़ी, यानी कि आप ईबे पे आए, एडसी पे आए, फेसबुक मार्केट प्लेस पे आए, उसके बाद आगे आए। मेरा कासिम तो ये है आपका ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा जर्नी। तो क्वेश्चन अमूमी तौर के ऊपर पाकिस्तानियों से होता है, हम लोग बिल्कुल स्मॉल लेवल की हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, कि भाई मुझे आप ये बताओ पैसा कमाना मकसूद है या कंपटीशन में घुसना मकसूद ये कंपटीशन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अगर आप मार्केट गैप ढूंढने की सलाहियत रखते हो, आपको एक गैप अवेलेबल है, आपको एक निश मैं आपकी ना कहते अवेलेबल बात काट रहा हूँ, ये जो डिग्रीज लेते हैं हम सब लोग किस लिए ले रहे होते हैं, इतनी एफर्ट हम क्यों करते है हैं? रिश्ते के लिए। और अच्छा, रिश्ता किस बेस पे मिलेगा? हाँ, रिश्ता किस बेस पे मिलेगा? रिश्ता तो जो है ना किसी की बेस पे भी आजकल नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल किसी के अब्बे को रिश्ता मिल गया था डिग्री की बेस के ऊपर, और उसी वजह से सारी कौम डिग्री करने लगी पड़ी है। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ इसकी कोई ये यूटिलाइजेशन। जो डिग्री या जो भी उनकी पढ़ाई या जो सारी जिंदगी मेहनत होती है वो इसलिए होती है ना कि कमाना शुरू करें। अच्छा, रिश्ता भी आजकल ना आपको मैं बताऊं, और ऑब्वियसली बल्कि आपने ही मुझे बताया हुआ है, आपकी कहते हैं मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैंने, रिश्ता मिलता है बच्चा पैसे किने कमा रहा है महीने दे, राइट? आपकी जनाब पीएचडी की हुई है और अर्निंग नहीं है तो मतलब नहीं मिलेगा रिश्ता, और जो देगा वो फिर बाद में कहेगा कि यार अल्लाह का वास्ता तुम कुछ कमाना शुरू कर दे, राइट? तो एक तो चीज़ जहन के अंदर बिल्कुल वाज़ी होनी चाहिए हमारी कौम को कि भाई आप ये सारी एफर्ट्स कर रहे हैं एक हलाल, जायज़ और बेहतर रिस्क अर्न करने के लिए, राइट? तो अपनी इस सोच को सब कॉन्शियस से निकाल के कॉन्शियस में ले आए यहाँ पे कि आप ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लें, अर्निंग करनी है ना, डॉलर्स में कर लो यार। पाकिस्तान किस करेंसी में कर्जा लेता है? डॉलर्स में। किस करेंसी में पे करता है? डॉलर्स में। ऑयल किस करेंसी के अंदर बाय करता डॉलर्स है? में। हमारी सारी कैलकुलेशंस किस करेंसी में हो रही होती हैं? डॉलर्स में। आईएमएफ हमें यानी कि किस करेंसी में लोन देता है? डॉलर्स में। चाइना, हमारे पॉलिटिशियंस के फौजियों के अकाउंट्स भी डॉलर्स में हैं। हाँ जी, ठीक है यानी कि पॉलिटिशियंस के तो डॉलर्स में, दूसरी बात मैं नहीं बोलता। नहीं, जनरल्स के अकाउंट्स भी डॉलर्स में, बल्कि ये तो पूरी की पूरी कंपनीज ही बाहर रखते हैं। मैं उस पे जजीरे भी बाहर रखते हैं, खैर नहीं मेरी अभी उतनी हिम्मत नहीं है अच्छा, तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी कहते हैं डॉलर्स में, राइट? तो वाई नॉट कि इस वक्त हमारी कौम, हमारी ये यूथ या जो हमारे वो लोग जिस वक्त अपनी जॉब से या अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से या अपने बिजनेस से वो थोड़ी मजीद बेहतरी वाली साइड पे आना चाहते हैं, तो वो यार डॉलर्स के अंदर सोचना शुरू करें, क्योंकि जब वो डॉलर्स में सोचना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला डॉलर्स में वजूद देना शुरू कर देंगे। हाँ जी, आपने अर्निंग कैसे करनी उसके आइडियाज देने शुरू कर देंगे। अच्छा, जब बोले आइडियाज आने शुरू, डॉलर्स में सोच कैसे शुरू होगी कासिम, ये बताएं मुझे। हाँ जी उस्मान भाई, हाँ मतलब हम पीटीवी देखने से, एआरवाई देखने से, जीयू देखने से किस तरह शुरू? बिल्कुल, ये आपने कहते एक बहुत जबरदस्त कहते सवाल पूछ लिया कि मैं एक चीज कहूंगा, चाहे समझ ना आए, चाहे समझ ना आए, कोशिश किया करें कि दिन में 15 मिनट ब्लूमबर्ग देख लें, ठीक है, चाहे ना समझ आए। ब्लूमबर्ग है क्या, ये भी ब्लूमबर्ग एक बेसिकली बिल्ली का नाम ये टेलीविजन चैनल है, लगे किसी जैसे लड़की का नाम है वो ब्लूमबर्ग देख रही हो, मैं ब्लूमबर्ग को देखने जा रही हूँ। ये एक कहते चैनल है। अच्छा, चैनल। और आम तौर पे जहाँ पे भी कहते हैं यानी कि केबल के चैनल्स आ रहे होते हैं, तो आम तौर पे जो एंड वाले चैनल्स हैं उनमें ये होता है, आम तौर पे ये जो बिजनेस चैनल्स हैं उनमें होता है। उसमें कोई भी समझ नहीं आ रही ना, बस जनाब देखते रहे, वो कोई डॉलर्स की बात हो रही है, कुछ ऐसे हो रही है, वो ऐसे कोई 2-4 टर्मिनोलॉजीज आपके जहन में आ जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप किसी ऐसे काम में फ़ौरन या आहिस्ता आहिस्ता आ जाएं जिसमें अर्निंग डॉलर्स में होती है, आपके क्लाइंट्स गोरे होते हैं, मतलब इंटरनेशनल लोग। अच्छा, डॉलर से मेरी हमेशा मुराद ये होगी किसी भी डेवलप्ड कंट्री की करेंसी, इट कैन बी यूरोज, इट कैन बी यन्स, इट कैन बी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, इट कैन बी पाउंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, राइट? अच्छा, अब ये है कि जी आप कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बैंकर हूँ, मैं तो कहते हैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, तो फिर मुझे पता नहीं मेरी छुट्टी कब तक होनी होती है, लेकिन ना मैं सोच रहा हूँ आजकल रिज़ाइन दे दूँ। भाई ज़रूर आपने आगे बढ़ना है, लेकिन रिस्क आपने कैलकुलेटेड लेने हैं। अगर आपके पास 180 दिन यानी कि 6 महीने का खर्च मौजूद है कि जी मैं अगर जॉब छोड़ देता हूँ और आगे बस अगर 180 दिन का खर्च मौजूद है, तो मैं आपकी जगह होता तो मैं छोड़ देता जॉब। मैं 180 दिन के अंदर अंदर आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करता हूं, और आप कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली फोकस होके 180 दिन ईबे के ऊपर लगाते हैं और जो चीज़ें हम बताते हैं अगर आप वो करते हैं, आप इंशाल्लाह आराम से
1 लाख रुपया आराम से क्रॉस कर महीने का जाते कमा हैं, सकते आराम से क्रॉस कर जाते अच्छा कासिम, आप लास्ट क्वेश्चन है और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, हैं। राइट। ठीक है जी, मैं पहले बताता चलूँ, ये जनाब बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आपके माशाल्लाह चेहरे पे मराब भी पड़ा है, ये इस चीज़ की एक निशानी है कि माशाल्लाह आप 5 वक्त के तो नमाजी हो कम अज़ कम, ठीक है, ऊपर से आप बारिश आदमी हो और मोरे मौलवी भी हो, ठीक है। अब अगर हम लोगों का एक जानना मानना, हमारा बिलीव ये है कि जो रिस्क रब ने लिख दिया है वो मिलना ही मिलना है, तो भाईजान ये सारा तमाशा लगाने की ज़रूरत क्या है? नमाज पढ़ते हैं, दुनिया में नमाज पढ़ते हैं, आखिर में हूर मिल जाएगी। हूर एक नहीं, हाँ सॉरी, आप सॉरी यार, मल्टीपल हो रहे हैं, राइट। तो मेरी बेगम सुन रही होंगी वैसे। हाँ, तो मल्टीपल हो रहे हैं, आप यहाँ भी पैसे ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल मुझे आप ये बताइए कि आप किस तरफ कौम को लगा रहे हैं, डॉलर्स कमाने की तरफ? उस्मान भाई, जो रिस्क है वो तो आ ही जाना हमारे पास, तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं है? उस्मान भाई, इसमें आपने मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, मैं बल्कि एक अपना ज़ाती वाक़या शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने एक दफ़ा शायद जुमे का खुतबा था कोई, या कोई बयान था रमज़ान का, एक मुझे ना कहते उस आलिम का कहते नाम याद नहीं है, क्योंकि ये कोई 9-10 साल या इससे ज़्यादा पुरानी बात है। उन्होंने एक वाक़या बयान किया कि कोई एक साहब थे, कोई एक दरवेश था, वो बड़े ना कहते हैं कोई हालात ख़राब थे उसके फाइनेंशियल, और वो किसी जंगल वाली जगह पे बैठा हुआ था। अब वो उन्होंने तो यानी कि विद रेफरेंसेस बात की थी, मुझे स्टोरी याद है मुझे। अच्छा, अब वो ना कहते परेशान बैठा हुआ था कि जी मेरा ना रिस्क नहीं खुलता, राइट, मैं ये दरवेशी की हालत में ही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इतने में ना वो देखता है कि एक सामने झाड़ी में ना एक चिड़िया है, जिसके ना कहते हैं एक चिड़िया है जिसके ना कहते हैं पर कटे हुए थे या ठीक नहीं थे, तो वो फड़फड़ाती थी, उड़ नहीं सकती थी। अच्छा, वो क्या ना उसको बैठ के देखने लग गया कि देखता हूँ कि ये कितनी देर में मरती है, ये चींटियाँ इसको आके चिमटती हैं, इसको खाती हैं, इसकी बोटियाँ अलहदा करती हैं। इतने में, अब एग्जैक्टली मुझे वो वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन इतने में ना वो कोई और स्पीशी का परिंदा, यानी कि वो चिड़िया नहीं थी, वो था तो परिंदा लेकिन किसी और स्पीशी का था परिंदा, वो आता है और उसकी चोंच में ना खुराक होती है, ठीक है, वो अपनी खुराक अपनी चोंच में लाके उसके मुंह में डाल देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जी देखें जी, रिस्क अल्लाह ताला ने देना है, सुभान अल्लाह, आप जहां पे हैं अल्लाह ताला ने आपको रिस्क कहते हैं पहुंचाना है। सुभान अल्लाह। कहते वो जब वो चीज़ देखी तो उस दरवेश ने ना कहा कि जी बस अब तो मैं बस जिक्र करूंगा और रिस्क अल्लाह ताला ने देना। जब वो सारा बयान ख़त्म हुआ ना, मैं उस आलिम के पास उठ के चला गया, मैंने कहा कि जी आप लोगों को ये क्यों बता रहे हैं कि तुम वो वाला परिंदा बनो जो ऐसे पड़ा हुआ है और मुंह खोला हुआ है उसने, आप ये क्यों नहीं कहते कि वो परिंदा बनो जिसने उसके मुंह में आके कहते दाना डाला है। सुभान अल्लाह, वाह। मैंने कहा ये तो आप हमारी कौम को कहते पैरालाइज किए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है, आके कहता है, मैं वैसे ज़्यादा दीन पे बात नहीं करता क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन ये चूँकि एक वाक़या है, वो आके कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खाने को नहीं है कुछ और हालात ठीक नहीं है मेरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है तुम्हारे? अब उसने शायद अपनी ज़रा का बोला या क्या चीज़ बोली कि जी वो चीज़ मेरे पास है। उन्होंने कहा कि जी ले आओ, ले आए। अब जो मुझे याद पड़ता है शायद 2 रिवायत हैं, एक में शायद उसको कहा कि जी इसको बेच के पैसे ले आओ, और दूसरा ये था कोई सहाबा शायद सामने बैठे हुए थे, उनको कहा कि कोई ये ख़रीद ले। जो अमाउंट आई ना, हाफ अमाउंट से उन्होंने कहा कि जी तुम अपनी एमरजेंसी कवर करो, राशन वगैरह ले लो। हाफ अमाउंट से उन्होंने कहा कि जी कुल्हाड़ा लेके आओ, जो उसका लोहे वाली साइड, वो लेके आता है तो उसकी लकड़ी का दस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हाथ से सेट करते हैं। सुभान अल्लाह। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेके आते हैं कि भाई ये पकड़, चल जाके जंगल में जाके कहते हैं लकड़ियां काट। वो भी तो कह सकते थे तुम भी असहाबे सुफा में बैठ जाओ, मेरे कहते दीन की बातें सीखो, राइट। और साथ में ये भी कहा कि मुझे नजर ना आना इतना अरसा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर खुद उनको कहते हैं भी जाओ जाके तुम ये वाली चीज कहते हैं करो। वो कह सकते थे कि भाई तुम सिर्फ बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करो। हाँ, रिस्क जितना तो हमारे नबी के जो दामाद
जिनको नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के साथ मतलब हज़रत उस्मान गनी, एक वक्त मतलब एक वक्त में एक और अगले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िल-नूरैन, वो अपने वक्त के सबसे बड़े ताजिर थे। अगर माल कमाना इतनी बुरी बात थी तो वो अपनी 2 बेटियों की शादी उन्होंने उनके साथ क्यों की? हाँ, मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि भाई कमाना है तो हलाल, अजान होगी छोड़ दो, उठ के जाके नमाज पढ़ो, किसी का हक नहीं मारना, इन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता। कहते हैं कि जी रिस्क के पीछे पड़ गए, लालच में आ गए और ये वाली चीज़। अच्छा अल्लाह भूल अच्छा गए, नमाज़ों को भूल गए। अशरा मुबशरा यानी कि वो 10 सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जिन्हें उनकी ज़िंदगी में बशारत दे दी गई कि तुम लोग जन्नती हो। एक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिलियनियर अपने वक्त के, कि एक ऊँट मदीना पहुंचता था, दूसरा शेख शाम से चल रहा होता था। दूसरे अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिनके बारे में था कि वो मट्टी में भी हाथ डाल दें तो सोना बन जाती है। मदीना आए थे तो उनके पास कोई माल नहीं था, उनके पास कमी बेशी माफ, मतलब मैं दीन का मतलब उतना वो नहीं हूँ, कोशिश करते। अच्छा, अगर ये चीज़ें इतनी बुरी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक देते कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ा, बस कहते हैं बैठ जाओ। अच्छा, फिर जो एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम है, मोमिन है, वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है उसकी निस्बत जो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हमारे तो दीन के अंदर कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है कि मोमिन वो है कि जिसका आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर है। ये बातें हमें को बताता नहीं। रीज़न उसकी है ना, उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इंतहाई काबिल एहतराम उलमा कराम, राइट, हम खुद भी कहते हैं, हमारा बचपन कहते हैं डिफरेंट मदारिस के अंदर गुजरा है, वहाँ पे इस तरह की बड़ी थिंकिंग के ऊपर कोई बात ही नहीं होती। वहाँ पे तो ये होता था कि भाई तुमने ये हिफ्स कर लिया या तुमने ये दरस निज़ामी कर लिया ना, आपको मार पड़ेगी मेरे ख्याल हाँ से। अब नहीं, ये आप किसी के बिजनेस को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। मैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन्हें कह दिया अब तुमने आगे जाके एक मस्जिद संभाल लिया तुमने, तो भाई मस्जिद बिल्कुल संभालें, बिल्कुल आप ये चीज़ करें, लेकिन साथ में आप कोई एक इंडिपेंडेंट वर्क, कोई ई कॉमर्स, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई इस तरह की मतलब ये वाली चीज़ें आप करें। मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत था कि जब मैं कहते हैं कुरान मजीद पढ़ता था, मुझे ऐसे कारी साहब मिल गए थे जो कारी साहब भी थे, साथ में एक एंटरप्रेन्योर भी थे। वो एक काफ़ी अच्छा बिजनेस था उनका, कहते हैं मिल्क, दूध का उनका। तो यानी कि मैं थोड़ा सा इस लिहाज से कहते खुशकिस्मत था कि मैं जब थोड़ा सा मदरसे में भी रहा हूँ तो तब भी है ना हमें एक अच्छी सोच हमें कहते हैं वहाँ से मिली थी। तो ये जब हम एज अ नेशन इस थिंकिंग पे हम आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक चीज़ उस्मान भाई, एक चीज़ मैं बार बार कहता होता हूँ अपनी जो भी कहते हैं मेरे कोई पॉडकास्ट होते हैं या कि थॉट्स बिकम थिंग्स। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये मैं बार कुन फयाकुन, वो तो मेरे अल्लाह का वो है ना, कुन फयाकुन। थॉट्स बिकम थिंग्स, थॉट बिकम्स थिंग, थॉट जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो। अच्छा, इसकी ना मैं एक चीज़ मतलब जो मैंने आपसे एक्सट्रैक्ट की थी, एक दफ़ा आपने ना मुझे नाचीज़ को लाइव लिया था और मैंने ना कहते हैं ईबे के स्टैट्स के ऊपर बात करते हुए मैंने वो एक बात की कि 19 मिलियन सेलर्स हैं। अच्छा, उससे पहले ना मैंने ऐसा नहीं सोचा हुआ था। आपने कहा 19 मिलियन सेलर हैं, मैंने कहा जी। आपने कहा 1 करोड़ 90 लाख, मैंने कहा जी। कुछ ऐसे हमारी बात हुई थी। तो आपने ऑडियंस को कहा कि जी अगर इन 19 मिलियन सेलर्स को पाकिस्तानी अगर सर्विसेज देनी शुरू कर दें तो मेरी इस चीज़ ने तो मेरा कहते हैं पैराडाइम चेंज कर दिया। मैं आके टीम के साथ बैठा, हमने कहते हैं कैलकुलेशन की 19 मिलियन का हम अगर 0.5% निकाले तो वो 95,000 बनते हैं। हमने कहा कि अगले 5 साल 31 दिसंबर 2027 तक एम्पावरर्स का यह विजन है कि इंशाल्लाह हमने 95,000 पाकिस्तानीज को एम्पावर करना है ईबे और अदर मार्केट प्लेसेस के ऊपर, स्पेसिफिकली ऑन ईबे, कि वो इन 1 करोड़ 90 लाख लोगों को सर्विसेज देनी शुरू करें। ईबे के ऊपर ऑलरेडी सेलर्स हैं, राइट जनाब। और हम लोग पूरी कौम को ए लेवल और ओ लेवल करा के और मास्टर्स डिग्रियां करा के मत मार दी। अब ये एक थॉट थी जो आपने दी। अब मैं वही बात करूं कि थॉट्स बिकम थिंग्स। ये एक थॉट थी अल्हम्दुलिल्लाह जो आपसे एक्सट्रैक्ट हुई और कहते मैंने बोली चीज, और वो थॉट अब थिंग बननी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव ओपनड ऑस्ट्रेलिया जो ईबे का हेवन है, वहाँ पे मेरे ख्याल में हमारे लाखों पाकिस्तानीज हैं। अब हम स्पेसिफिक टू ईबे ऑस्ट्रेलिया, ईबे यूके, ईबे यूएस से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। करना स्टूडेंट्स नहीं है, हमारा काम है रास्ता दिखाना, हमारा काम है उन्हें एक स्ट्रक्चर में लेके आना, हमारा काम है उन्हें एक सोच देना। करना उन्होंने, या ईबे का सीईओ भी आ जाएगा, ये जो आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। अगर ये हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये इंशाल्लाह बेपना कर जाएंगे जैसे कहते हैं बाकी लोगों ने किया।
ऑलराइट कासिम, थैंक यू सो मच जनाब। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा और मैंने बड़े तीखे सवाल भी कासिम से पूछे और अल्लाह ख्याल रखे मदरसे वालों से इनकी जान बची रहे। आखिर के अंदर उन लोगों के लिए ये पैगाम जो समझते हैं कि वाक़तन ही रिस्क जो है जो मुयस्सर है वो मिल जाना है, बेशक आपको मिल जाना है। मुझे तो कुरान में मैं जब पढ़ता हूँ तो अल्लाह ये फरमाता है कि बेशक पहले इस पारे में तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसकी तुम जिद्दोजहद करते हो, जिसकी तुम कोशिश करते हो। लेकिन अगर हम वरियन मान भी लेते हैं तो जनाब मर्सिडीज़, BMW, फार्चूनर, वड़ा कार, शोधपुना, ठीक है ना, उम्रे, हज, चैरिटी, मसाजिद बनाना, ये बेशक आपके नसीब में नहीं है। ठीक है, रोटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ भी जाएगी, फकीर ਨੂੰ भी ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ है, लेकिन जे गड्डी लेनी जे ना, जे चंगे जूते पाने जे, जे थोड़ा जा शोध पुना करना है तो यकीन मानिए आपको काम करना पड़ेगा। और आखिर में जनाब आज की पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे अपने दादाजी के। वो कुछ शेर पढ़ा करते थे, मुझे कुछ याद हैं। वो कहा करते थे कि बेटा निकम्मों के हैं ये दिलकश तराने, नहीं चाहते दस्तो बाजू हलाने, नहीं काम लेते वो तदबीर से, वो सदा लड़ते रहते हैं तकदीर से, वो सदा लड़ते रहते हैं वो तकदीर से, वो नहीं करते वो खेती में जांफशानी, ना हल जोतते हैं ना देते हैं पानी, जब यास करती है दिल पे गरानी तो कहते हैं हक की है ना मेहरबानी। ठीक है कि हक की है ना मेहरबानी। अगर कहते हैं बाजी जीत ली भी तो फिर क्या कि जिंदगी है 2 दिन की मेहमान है कि जी कहते ने मेरे दादा कहते ने कि जे यार पैसा कमा भी लिया मारी जाना ना चौधरी ने अन्नी मेहनत करदा सवेर दोपहरी शाम इन्हें मारी जाना है तो यार उन्हें तो मर जाना है तो तुसी भी मर जाना है। ठीक है ना, तो खैर मरना सभी ने है लेकिन सदका जारिया कर जाएं। हाँ उस्मान भाई, मतलब ये पॉडकास्ट तो एक तरह से एंड होगी। अभी एक चीज़ कहते हैं मेरे ज़हन में आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आपके हम सब के कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले पूरी एफर्ट करके 313 को लेके आ गए मैदान में। मेरे ख्याल में 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे, किसी के पास तलवार थी किसी के पास नहीं थी। जो कर सकते थे करके अब रात को खड़े हुए अल्लाह हूँ तू ही करना। इसके ऊपर तुम्हारी पूरी पॉडकास्ट है। ओहो, अच्छा जबरदस्त। तो पहले तो उन्होंने लाके खड़ा कर दिया, फिर की दुआ, यानी कि दुआ बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो अल्लाह ने आपके अंदर मतलब जो अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दे दिए पहले वो पुट कर लो फिर खड़े हो उसके अंदर। ठीक है, दिमाग ठीक है, लत पैर ठीक ने, दुनिया में भेजा है तो भाई ये अल्लाह का करम ही है ना। उठो उठान करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਦੋ कि यार ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ कोई। खैर एनीवेज, तो बहरहाल जिन लोगों ने काम नहीं करना उन्होंने नहीं करना, उनके लिए आप कुछ मजीद चैनल ढूंढ लें। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन नया न्यूज़ चैनल खुलता जा रहा है, तो अगर आप उससे थक गए तो आप कुछ इंडियन चैनल्स को फॉलो कर लीजिए, यकीनन आपको फाका होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब, ई कॉमर्स पाइंदाबाद। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू उस्मान भाई, थैंक यू सो मच।